Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Educational Corner. Today we are going to start new series of Science NCERT Class 7 book, that is Curiosity. I have already posted videos of Purvi and Malhar of Class 7 on my channel, Educational Corner. And you can also see class 6th Hindi and science videos with important points on my channel. Now let's start with this book. Let's first go through the content or lessons which are given in this book. The contents: Chapter 1, The Ever Evolving World of Science. Chapter 2, Exploring Substances, Acidic, Basic and Neutral. Chapter 3, Electricity, Circuits and their components. Chapter 4, The World of Metals and Non-Metals. Chapter 5, Changes Around Us, Physical and Chemical. Chapter 6, Adolescence, a Stage of Growth and Change. Chapter 7, Heat Transfer in Nature. Chapter 8, Measurement of Time and Motion. Chapter 9, Life Processes in Animals. Chapter 10, Life Processes in Plants. Chapter 11, Light, Shadows and Reflection. Chapter 12, Earth, Moon and the Sun. So we are going to start today with chapter number 1. That is the ever evolving world of science. So let's do the reading of this chapter and you will understand what is this chapter about. Chapter 1, The Ever Evolving World of Science. We hope you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science. This again is not just a textbook with facts. It is an invitation to questions, to perform experiment and to explore as we try to understand the beautiful world we live in. So यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि ग्रेड 6 में मतलब आपकी क्लास 6 में भी क्यूरियोसिटी बुक थी जहाँ पे आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो इन्जॉय करी, सीखी। अब ये जो 7th स्टैंडर्ड की बुक आई है इसका नाम भी क्यूरियोसिटी है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ बुक, आपको दिस इज़ इनविटेशन टू क्वेश्चन। आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और एक्सप्लोर भी करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड को समझने के लिए जहाँ पर हम रह रहे हैं। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार। तो साइंस का जो वर्ल्ड है वो सारी चीज़ों को कवर करता है, ठीक है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, पास हो या दूर हो। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड द लीफ और द मूवमेंट ऑफ सन एंड स्टार्स। सो चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी हो, जैसे कि वो कह रहे हैं कि लीफ है, जो लीफ के ऊपर जो है वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, तो हम उन पे भी ध्यान देंगे। और बड़ी चीज़ क्या है, मूवमेंट ऑफ सन एंड स्टार, हम उन पे भी ध्यान देंगे। We may be testing out the materials around us at home or discussing how water flows underground. मे बी हम ये भी टेस्ट करेंगे कि क्या क्या मटेरियल हमारे पास घर में अवेलेबल है और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वाटर अंडरग्राउंड जो है वो वाटर अंडरग्राउंड होके फ्लो करता है। As you go through the chapters in this book, you will start new adventures that challenge your thinking, expand your knowledge and help you become an explorer making small discoveries for yourself. तो जैसे जैसे हम बुक में ये चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, आपको जो है वो आप न्यू एडवेंचर्स जो है चैलेंजेस लेना स्टार्ट कर देंगे और आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी, क्रिएटिव हो जाएगी, नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी और आप एक तरह का सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, एक्सप्लोरर बन जाएंगे और छोटी छोटी डिस्कवरीज भी देखेंगे। Before we dive into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book. Look at the page numbers, they follow the playful flight of butterfly and the soaring of paper plane. Just as butterfly flutters freely and a paper plane flies into sky, learning takes flight when curiosity leads the way.
Did you know something as simple as paper plane inspired real scientific exploration of flights? So इससे पहले कि हम अपनी जर्नी स्टार्ट करें, और कुछ स्पेशल है इस बुक में कि जो पेज नंबर्स हैं वो एक प्लेफुल तरीके से दिए हैं, या तो वो कोई जैसे बटरफ्लाई के उसमें दिया गया है, बटरफ्लाई बनी हुई है और वहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर, या पेपर प्लेन के फॉर्म में आपको पेज नंबर दिया। तो जिस तरह से एक बटरफ्लाई जो है इधर से उधर उड़ती है फ्रीली, और पेपर प्लेन भी जो है वो स्काई में उड़ता है इधर से उधर, उसी तरीके से हम भी जो है वो क्यूरियोसिटी के वे में जो है वो जा रहे हैं। क्यूरियोसिटी होती क्या है? ईगरनेस होती है, जो हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर, हमें किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद हमारे अंदर माइंड में क्यूरियोसिटी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, ईगरनेस होती है टू आस्क समथिंग। So, from early inventors studying bird wings to modern engineers designing aircraft, the dream of flying started with simple observations and experiment. तो जो पहले के टाइम में जो है बर्ड्स के पास विंग्स होते थे, ठीक है, तो लोग जो इन्वेंटर्स थे वो बर्ड्स के विंग्स को देखते थे। आज जो मॉडर्न इंजीनियर्स हैं उन्होंने एयरक्राफ्ट तक डिज़ाइन कर दी है इसी उस पे कि बर्ड्स अगर फ्लाई कर सकती हैं, उनके पास विंग्स होते हैं, तो एयरक्राफ्ट के भी उन्होंने विंग्स दे दिए और उनको फ्लाई करवा दिया। और ये जो फ्लाइंग का ड्रीम है वो सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के उससे सबका जो है वो फुलफिल हो गया। सो एज यू टर्न ईच पेज, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काई। तो यही इंपॉर्टेंट है इस बुक के अंदर। ये जो बुक है क्यूरियोसिटी, आपको जैसे जैसे आप पेज टर्न करोगे, आपको जैसे इमेज मिलेगी बटरफ्लाई की या किसी प्लेन की, तो आपको लगेगा कि आप एक कदम और आगे जा रहे हो किसके, इमेजिनेशन के, आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए नई चीज़ें जो है ढूंढोगे और आप स्काई तक पहुंचोगे। ठीक है। Exploration, of course, is not just about discovering new facts or learning about different things in nature. तो एक्सप्लोरेशन, किसी भी चीज़ को हम जब एक्सप्लोर करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम नई चीज़ें और फैक्ट्स को ढूंढ के उसको लर्न कर लें, नहीं। एक्सप्लोर करना इज डिफरेंट थिंग। साइंस, एज वी सेड इन ग्रेड 6, is a process, so it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions and is open to unknown। मतलब हमें अननोन जो चीज़ें हमें नहीं पता, हमें उनको जानना है। साइंस है क्या एक्चुअल में? साइंस जो है ऐसी थिंकिंग है जो हमारी क्यूरियोसिटी को जगाती है अंदर से, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो गया, या हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसा क्यों हो गया। तो ये हमारी क्यूरियोसिटी को, ईगरनेस को जगाती है, जिससे कि हम क्वेश्चंस और पुटअप करते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए ओपन हो जाते हैं जो हमारे लिए अननोन है, मतलब उनको भी हम जानते हैं। इन ग्रेड 7 वील ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन। ग्रेड 7 में हम जब आए हैं तो अब 7th स्टैंडर्ड में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डीपर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर। मतलब हम डीपर क्वेश्चन पूछेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ डू थिंग्स वर्क, क्या इनके आंसर जो है वो सारे डीप होंगे कि थिंग्स कैसे वर्क करती हैं, कौन सी थिंग्स पूछेंगे। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, इवेंट्स जो है वो एक तरीके से, जो एक वे में है उस तरीके से ही क्यों हैपन होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स वी सी इन नेचर, जो हम पैटर्न नेचर में देखते हैं उससे हम क्या लर्न करते हैं। To do this, we have to step out of this book, step out of the classroom, perhaps, and experience the world through activities and experiment। अब ऐसा करने के लिए जब हमें डीपर क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब इस बुक से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बुक में जो नॉलेज है वो तो आपकी लिमिटेड नॉलेज है, तो बुक से बाहर निकलना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा बाहर के वर्ल्ड का, क्लासरूम से बाहर निकलना पड़ेगा, और एक्टिविटीज़ जो हैं, थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स हमें सारी चीज़ों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve us as stepping stones to deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet। तो ये जो एक्सपीरियंसेस जो हमें मिलेंगे वो सिर्फ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग नहीं होंगे, बल्कि हमारे लिए हेल्प करेंगे हमें कि हम जो एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं उसकी और डीपर नॉलेज हमें मिलेगी, जहाँ पर जिस प्लानट पे हम रहते हैं। We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery।
इससे आपको ये भी पता लगेगा कि साइंस जो है ना वो एक ऐसी प्रोसेस है, ऑन गोइंग मतलब चलती जाने वाली, हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कभी रुकेगी नहीं डिस्कवरी की। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंस जो है वो सिर्फ डिस्कवरी नहीं है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स यू विल सून see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. तो जैसे आप धीरे धीरे साइंस में आगे बढ़ोगे, साइंस को समझोगे, एक्सप्लोर करोगे, आपको ये समझ आएगा कि किस प्रकार से हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो नेचुरल वर्ल्ड से लिंक्ड है। ठीक है, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, अब वो नेचुरल वर्ल्ड जो है वो एक्चुअल में उससे रिलेटेड है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वो हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड है, लिंक्ड अप है। पोल्यूशन, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, you will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. तो आपको पता चलेगा कि साइंस जो है एनवायरनमेंट के जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं हम, जो भी चैलेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में हैं, जिस चीज़ों को हमें ठीक करना है, और किस तरह से एक अच्छा जो है सस्टेनेबल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। But let's get back into the book for now. You will read about topics in different fields of science from physics to chemistry to biology and earth science. तो अब आप अभी फ़िलहाल के लिए तो हम जो है वो बुक में आ जाते हैं, और बुक में यही हमें अलग अलग टॉपिक्स आएंगे साइंस के, कुछ फिजिक्स के होंगे, कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी के, और कुछ साइंस अर्थ से रिलेटेड. While they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, they are interconnected. ठीक है, जो भी चैप्टर्स आपने ग्रेड 6 में पढ़े, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो उनसे एक फॉरवर्ड होंगे, बट दे आर इंटरकनेक्टेड. Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another, or at least allow us to ask question in another area. ठीक है, जो हमारे साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं, अब हमने कभी किसी एक एरिया में अगर पूछा तो हमें इंस्पायर करते हैं कि दूसरे एरिया में भी क्वेश्चन पूछें. ठीक है, तो वो हमारी क्यूरियोसिटी के ऊपर है कि हम कितने ईगर हैं क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए. तो so let's take a quick journey through our book for this year. We'll start by looking at the properties of material around us. हमारे आसपास क्या क्या मटेरियल. ठीक है, आप देखो, आप जब जहाँ बैठे हो आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें होंगी, है ना, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी. तो वो जो चीज़ें हैं वो किससे बनी है. ठीक है, टेबल ले लिया, वो वुड से बना. ठीक है, और कोई चीज़ आपने ले ली, जैसे कि आपने अलमीरा ले ली, वो आयरन से बनी है. तो ऐसी जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी, हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे इसमें. मोस्टली थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन अबाउट व्हाई आर सम फ्रूट्स सोर. अब कई फ्रूट होते हैं वो खट्टे होते हैं, क्यों होते हैं. फ्रूट्स जो है वो सोर यानी कि खट्टे क्यों होते हैं, आपको पता है क्यों होते हैं. कि इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि एक तो फ्रूट टाइप कैसा है वो, ठीक है, वो राइप है या नहीं है. दूसरा कि उसमें कई फ्रूट्स में जो है ना ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, जो उनको खट्टा बनाता है. ठीक है, तो सिट्रिक एसिड की वजह से भी जो है, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, तो इनमें जो है ना क्या होता है कि सिट्रिक एसिड की वजह से दे आर सोर इन नेचर. What happens when we wash a haldi stain on our school uniform? तो जब आपकी यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पे हल्दी का स्ट्रेन लग जाता है, जैसे आप खाना खा रहे हो, कोई सब्जी गिर गई, तो क्या होता है जब हम उसे वॉश करते हैं, कई बार तो जो आप, अगर स्ट्रेन ज़्यादा गहरा नहीं है तो वो इजीली आप गुड डिटर्जेंट की हेल्प से रिमूव कर लोगे. बट अगर वो टफर स्ट्रेन है, बहुत गहरा स्ट्रेन है, तो वो इजीली रिमूव नहीं होता, शर्ट पे से वो दाग जो है वो वहाँ पर रह जाता है. वी देन मूव ऑन एंड प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज. अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बैटरी से खेलेंगे. ठीक है, लैम्प्स एंड वायर्स टू फाइंड अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. और मटेरियल कैसे हैं, जैसे कि लैम्प हो गई, बैटरी हो गई, वायर हो गया. व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो. एक अगर लैम्प को हमें, जो एक बल्ब है उसको अगर हमें ग्लो करना है, जलाना है, तो हम किस तरह की, हमें किस तरह की मटेरियल चाहिए. दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी. तो
अगर हम किसी लैम्प को कराना चाहते हैं, ग्लो का मतलब होता है जलाना चाहते हैं, तो किस तरह के मटेरियल जो है वो हमें चाहिए होंगे। तो एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ, और इससे ही हम वर्ल्ड किसके वर्ल्ड में घुस जाएंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। We know from our experience that a torch battery runs out eventually and can't be used again. एक टॉर्च की अगर आपने बैटरी देखी हो, टॉर्च जो है उसकी बैटरी अगर अगर उसकी बैटरी ख़त्म है, सेल ख़त्म है, वीक हो गए, तो उसको दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते. We'll explore what kind of changes happen around us. Some changes may be reversed and some are not reversed. कई चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है, और कई होते हैं जो रिवर्स जो है वो नहीं हो सकते। तो वो कौन से चेंजेस होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, और जो रिवर्स नहीं हो सकते उन्हें हम कहते हैं केमिकल चेंज। हम ये भी पढ़ेंगे काइंड ऑफ चेंजेस। बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट इनटू वाटर, फ्रूट्स रिपन, रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज। तो बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही, मतलब सेल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, और आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है वाटर में, ठीक है। फ्रूट्स राइपन, तो किस तरह के चेंज, रॉक्स जो है वो पेबल में चेंज हो जाते हैं, ये किस तरह के चेंज है। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड. वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, वेदर इट इज मेल्टिंग एन आइस क्यूब इन अ ग्लास और मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर। तो हम हीट के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हीट फ्लो करती है, ठीक है, और क्या वेदर इट इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस इन आइस क्यूब इन ग्लास, आइस क्यूब जो है वो कैसे मेल्ट हो जाती है एक ग्लास में, या फिर एक बड़ा ग्लेशियर कैसे मेल्ट हो जाता है। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर एंड विद द हीट फ्रॉम द सन इट इवेपोरेट्स फ्रॉम सी एंड फॉल एज रेन। जैसे ही पानी जो है, पानी हर जगह है, तो पानी जो है जैसे ही गर्म होता है सन की लाइट की वजह से, तो वो जो भाप बनती है, वो भाप जो है वो सी से सीधा जो है वो क्लाउड्स बन जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और फिर वो क्लाउड्स बनने के बाद वो नीचे गिरते हैं एज अ रेन, परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू ग्राउंड समवेयर फार. However, it isn't just changes in material around us that we see or hidden changes in water that we do not see. तो सिर्फ ये बात चेंजेस की नहीं है, ऐसे मटेरियल्स की नहीं है जो हमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हिडन है, छुपी हुई हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रही. एज वी आर ग्रोइंग आर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल. जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है. आपने देखा होगा अपनी बॉडी में चेंज फील किया होगा. जब आप बहुत छोटे थे, इन्फेंट थे, तो आपकी बॉडी अलग तरीके की थी, और अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो तो बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं. स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स आर बॉडीज आर changing rapidly. Why? Not just as humans, there are life processes that are essential to all animals for their survival. तो एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस में तो चेंजेस होते हैं, एनिमल्स में भी लाइफ प्रोसेस, इस तरह के लाइफ प्रोसेस के बारे में उनकी पढ़ना, उनके सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है, ये सब भी हम जो है वो इस बुक में पढ़ेंगे. टू ग्रो we have to eat, breathe. Blood has to circulate the nutrients from the food all over the body and so on. तो इसका मतलब हम फूड के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे इस इस बुक के अंदर, ठीक है, कि जब हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रो होना है, तो उस टाइम पे क्या है, हमें खाना ज़रूरी है, हम अच्छी एयर ब्रीथ करते हैं, ब्लड जो है वो सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, किससे, फ्रॉम द फूड ऑल ओवर, फ्रॉम सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, जो हमारी बॉडी के अंदर फूड है उससे. बट वाई एनिमल्स अलोन, डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो. एनिमल्स को फूड चाहिए, प्लांट को नहीं चाहिए, प्लांट को भी चाहिए. हाउ डू दे गेट देयर फूड, प्लांट्स को कैसे फूड मिलता है. डू दे ऑल्सो ब्रीथ, हाउ, येस दे ब्रीथ. Over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how do this in a beautiful and carefully balanced way. But what is time? The clock on the wall or wristwatch tells us the time and how it passes. We get prepared to go to school in morning and are ready to sleep at night. But have you thought about how we measure time and how fast does something happen? तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप जैसे एनिमल्स को फूड चाहिए, ऐसी तरह से प्लांट्स को भी फूड चाहिए. और प्लांट्स को फूड कैसे मिलता है, हमारी अर्थ पे हर चीज़ जो है ना बहुत सुंदर है, और हम उसको एक बैलेंस्ड वे में चला रहे हैं.
बट कैसे? क्योंकि जो क्लॉक है, जो वॉल पे जो आपकी क्लॉक लगी है या जो आपने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, वो आपको एक टाइम बताती है। धीरे धीरे टाइम पास होता जाता है, निकलता जाता है, और हमारी लाइफ जो है वो एक रूटीन में ही चलती रहती है। जैसे सुबह मॉर्निंग में हमें पता है हमें स्कूल जाना है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। रात को हमें पता है हमें सोना है, तो हमारा टाइम जो है वो फिक्स होता है, हम उस टाइम पे आके सो जाते हैं। बट क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि टाइम को मेजर कैसे किया जाता है और टाइम इतनी जल्दी जल्दी कैसे भागता है? तो ये सब चीज़ें हम जो है वो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। Long before the age of electric clock and digital watches, early humans observed the shadow of objects in the sun and used the position of shadows to tell the time. तो पहले जब इलेक्ट्रिक क्लॉक्स और डिजिटल वॉचेस नहीं थी, तो ह्यूमन क्या करते थे? लोग जो है वो शैडोज, जो सन की शैडो है उसको ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, सन इन द सन में जो शेडो नजर आती थी उनको, उसको वो ऑब्जर्व करके जो है वो पोजीशन निकाल लेते थे और टाइम निकालते थे। उसकी पोजीशन को देखकर, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को देख के, शेडो को देखकर वो क्या करते थे? टाइम जो है वो पता लगा लेते। लाइट एंड शेडोज वर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो puppets or to tell the time. Naturally, light helps to see, and today we have developed a lot of ways to generate light, so we can read a book at night even when the sun does not shine. But more importantly, asking question about the nature. तो लाइट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट जो है वो हमें देखने के लिए काम आती है, कि हमें कुछ देखना है तो ही काम आती है, नहीं। आज के टाइम में अगर हम पढ़ना चाहें तो रात को बैठकर बुक भी पढ़ सकते हैं। इवन अगर सनशाइन नहीं कर रहा तब भी हम, इतनी रोशनी होती है लाइट में कि हम उसको पढ़ सकते हैं। Of light has given us a very deep understanding of universe we live in. While we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited things around us at home. तो जिस तरह से हमारे पास जो हमारी चीज़ें हैं घर पे, वो उनके बारे में पढ़ना वो एक लिमिटेड नॉलेज है हमारी। बट लाइट और शेडो जो है ना, वो नॉलेज इतनी ज़्यादा एक्सटेंडेड है और इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड थिंग्स। Even the earth and moon can cast shadow, leading to fascinating phenomena of eclipse. ये जो ग्रहण होते हैं अर्थ और मून की शेडो की वजह से जो है, जो ग्रहण होते हैं, इक्लिप्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। और डे एंड नाइट भी जो है वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो अर्थ की लाइट, जो सन की जो लाइट पड़ती है अर्थ के ऊपर, उसी की वजह से ये फिनोमिनन भी तभी होता है। To understand all this, we need to know how Earth rotates around its axis. ये समझने के लिए हमें ये पूरी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अर्थ कैसे ही अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, एंड हाउ मून्स गोज अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ अराउंड द सन। मून जो है वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है, आगे पीछे घूमता है, पूरा घूमता है, राउंड लेता है ना, और अर्थ जो है वो सन के आसपास चक्कर लगाता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आर ब्यूटीफुल प्लानट। और इनके जो ये रोटेशन लेते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, इस वजह से जो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग। इस वजह से ये सब चीज़ें सोच सोच के हो सकता है आप जो है वो आपका जो सर वो है वो घूम रहा हो, क्योंकि इतनी सारी बातें आपने कभी सोची नहीं होंगी। थिंक अबाउट इट, isn't it amazing that we humans can wonder about wonderful world we live in? तो ये क्या अमेजिंग नहीं है कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो एक बहुत ही वंडरफुल है। In the chapters that follow, you will also learn about simple observation and to do fun experiments and dive into topics that need careful thinking. तो ऐसे चैप्टर्स भी आगे आएंगे जिसमें आपने सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही काफ़ी चीज़ें जो है वो आप समझ जाओगे। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड encourages you to ask questions, explore and do hands on experiment and think like a scientist। और हर चैप्टर पे जो है कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, और कई चीज़ों पे आपको इनकरेज किया जाएगा, या आप खुद ही से आगे क्यूरियस होके क्वेश्चंस पूछोगे और एक्सप्लोर करोगे। एंड डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स को करोगे और साइंटिस्ट की तरह भी सोचोगे। As you will find out, even those experiments that seem to confirm what we think will happen might lead to some
एडिशनल क्वेश्चन दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। तो ऐसा भी होगा कहीं किसी एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप एडिशनल क्वेश्चन भी पूछोगे। हैप्पी एक्सप्लोरिंग एक्टिविटी 1.2 क्वेश्चन द आंसर। In school or during test, you are usually given questions and expected to find the answers. But let's turn that around. अब क्या है, आपके स्कूल में जब टेस्ट होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसके आंसर लिखने होते हैं। तो कह रहे हैं अब इसको हम चेंज कर देते हैं। कैसे? To think like a scientist, it is equally important to ask interesting questions. Great scientists don't just answer question. तो जो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको ज़रूरी है कि आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पुट अप करो। ठीक है, अगर कोई भी आपको हम जैसे कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर फटाफट से मिल जाता है ना, पर वो यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने आप को चेंज करो, आप उसकी जगह कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो। ग्रेट साइंटिस्ट जो है वो सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते, दे आस्क अमेजिंग वन, अलग अलग तरीके के पूछते हैं क्वेश्चंस, अमेजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। मतलब अगर आपको वाइज बनना है तो आपको वाई पर्सन बनना पड़ेगा, क्वेश्चंस पुट अप करने पड़ेंगे। ठीक है, लुक एट द आंसर्स बिलो, योर टास्क इज to come up with a curious, creative and fun question or situations that could lead to these answers. There are never any wrong questions, so let your imagination run wild. तो आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर्स दिए गए हैं, आपको उसके क्वेश्चंस जो है वो रीड करने हैं। मे बी आपको फन क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन जो भी आप बनाए अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, वो कभी गलत क्वेश्चंस नहीं होते। हमेशा क्वेश्चंस को कोशिश करो इमेजिनेशन से बनाने की और ऐसी सिचुएशंस को इमेजिन करो। सिंस सच एक्सरसाइजेज माइट नॉट बी फेमिलियर, देयर इज एन एग्जाम्पल टू हेल्प। तो हमने कभी ऐसे एक्सरसाइज अगर आपने नहीं की हुई है तो आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल, सपोज द आंसर वॉज जस्ट मेक इट हाफ। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट ऑल कुड दिस बी अ रिस्पॉन्स टू। अगर ये किसी ने आंसर किया जस्ट मेक इट हाफ, ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन क्या पुट करेंगे? Well, it could range from how do we ensure getting equal shares of cake to my S is too long, or I can't fit this in the envelope, or even I cannot dance to such a long song. All very different. So let's see what a creative question you can ask. ठीक है, अगर किसी ने ये बोल दिया जस्ट मेक इट हाफ, इसको हाफ कर दो। अब इसका वो कह रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। इसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम कैसे इंश्योर करें कि हमारे पास इक्वल शेयर है केक का, या फिर ऐसे बहुत लॉन्ग है इसको हाफ कर दो, या फिर ये एनवलप जो है आई कांट फिट दिस, इसको इस एनवलप में फिट नहीं कर पा रहे इसलिए इसको हाफ कर दो, या आई कांट डांस, इतने बड़े लॉन्ग डांस सॉन्ग पे मैं डांस नहीं कर सकते इसलिए इसको हाफ कर दो। तो ये सब कुछ इसका आंसर हो सकता है। तो ये सब क्रिएटिव क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा जस्ट मेक इट हाफ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जिसमें हमें क्वेश्चन डालने हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव डालने हैं। जैसे यहाँ दिया है जस्ट ऐड सम मिल्क। ठीक है, तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव टेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग टी। अगर आपने स्ट्रॉन्ग टी बना दी, उसका आपको टेस्ट इम्प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, आप उसमें मिल्क ऐड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाना है हमें, आंसर है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड। Why was the cat looking different? Then don't panic, I have my towel. What would the teacher say when she is not able to find duster in the class? ठीक है, if she is not able to find, teacher duster नहीं find कर पा रही है क्लास में, तो वो कहती है don't panic, I have a towel. Then answer is 42. इसका क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, हाउ मेनी चॉकलेट्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन योर क्लास। आपको अपनी क्लास में कितनी चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसका जो आंसर है वो 42। प्लीज आस्क अ मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑब्वियस क्वेश्चन लिंक व्हाट इज 32 + 10। अगर हम यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछ ले 32 + 10, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 42। तो कोई भी बोल सकता है, बट हमें यहाँ पर कुछ अलग से ही हटकर पूछना है, जैसे हाउ मेनी चॉकलेट्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन क्लास, या हाउ मेनी कुकीज़ यू एट येस्टरडे। हाँ, तो इस तरह से कुछ हमें डिफरेंटली कुछ क्वेश्चंस जो है वो
पुट अप करने हैं, और इवन व्हाट इज़ द आंसर टू लाइफ, द यूनिवर्स और एवरीथिंग। तो इस तरह से आपको जो है वो यहाँ पर क्वेश्चंस डिफरेंटली क्रिएटिव वे में आपको पुट करने हैं। ओके, so this is the last slide, and we have come to the end of this lesson. I hope you have understood this lesson. Now I'll meet you soon in my next video. So up till then, take good care of yourself. Bye.